अस्सलाम वालेकुम। अब इस वीडियो के अंदर हम इंग्लिश के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। आज शुमाइला हाउ शी हैज स्पेंड हर वेकेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हाउ डिड यू स्पेंड योर वेकेशन। आई सेड टू शुमाइला। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है माय फादर आज हिज फ्रेंड्स वेयर ही हैड फाउंड अ गर्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा वेयर डिड यू फाइंड द गर्ल माय फ्रेंड सेड माय फादर। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आई प्रपोज दैट वी शुड गो टू वॉच द मैच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। आई सेड लेट्स गो टू वॉच द मैच। ऑप्शन ए। नेक्स्ट ही ऑर्डर टू कम टू द नेक्स्ट डे इन द इवनिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ही सेड कम टुमारो इन द इवनिंग। ऑप्शन ए। नेक्स्ट आई रिक्वेस्टेड माय डॉटर टू गिव सम मिल्क एंड पीस ऑफ केक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। प्लीज गिव मी सम मिल्क एंड अ पीस ऑफ केक। आई सेड टू माय डॉटर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट ही एडमिटेड that he had a man staying with him but he did not know whether he was my missing friend। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। प्लीज ये सिक्स का ही सेड यस आई हैव अ मैन स्टेइंग विद मी बट आई डू नॉट नो वेदर ही इज योर मिसिंग फ्रेंड। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द स्ट्रेंजर सेड क्वालिटी दैट he was an ill-mannered giant and you would probably have to teach him a little civility before they part। तो इसका आंसर हो जाएगा द स्ट्रेंजर सेड quietly you are an ill-mannered giant and I will probably have to teach you a little civility before we part। Option A। Next, the girl said to the artist that she would be sitting for her second portrait and then asked whether it would be larger than the other। तो इसका आंसर हो जाएगा I will be sitting for my second portrait and will it be larger than the other, the girl said to the artist। Option A। Next है अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। Avelin Pygmy said to Alice very boldly that he was his enemy. He had slain the enormous antis, their brother are the faithful friends of their nation। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। I am your enemy, you have slain enormous antis and your brother and the faithful friend of our nation said the valiant pygmy to Hercules। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट जैक replied Peterson that if they had had any powder that indeed might have been used। जो इसका आंसर हो जाएगा if we had had any powder that indeed might have been useful said Jack Peterson। ऑप्शन बी। Next day, Newton said he saw himself a child playing on the seashore and picked up a curious shell or pretty pebbles, while the boundless onset of truth lies undiscovered before him। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन said I see myself a child playing on the seashore and picking up a curious shell or pretty pebble while the boundless ocean of truth lies before me। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है the man addressed his mother humbly and said that whether she did, she would always be dear to him, but he had a right to choose what was best for him। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास द मैन वाले का। सॉरी 12 वाले का कि मदर वट एवर यू डू यू विल ऑलवेज बी डियर टू मी बट हैव अ राइट टू चूज वॉट इज बेस्ट फॉर मी सेड द मैन टू हिज मदर। ऑप्शन सी। Next year, Peter said that a blazing fire would give enough of light, but it would also give a great deal more heat than in that warm climate of theirs। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। Peter said a blazing fire will give enough light, but it will also give a great deal more heat than in this warm climate of ours। Option B। Next है हमारे पास Hawkins replied that in fact he believed he had the thing in his pocket। To tell me the truth, he would like to get it kept it safety। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास। Hawkins said in fact I believe I have the thing in my pocket। To tell you the truth, I would like to get it kept in safety। इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास Portia warned Antonio that he had to prepare his bosom for the night and asked whether here he had anything to say। तो इसका आंसर हो जाएगा you must prepare your bosom for the night, do you have anything to say said Portia to Antonio। ऑप्शन बी।
अब हम जो बायोलॉजी के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एनवेलप वायरस। तो इसका आंसर हो जाएगा देयर आर टॉलरेंट टू अनदर एंटीबॉडीज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पोलियो वायरस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, स्फेरिकल वायरस की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीएनए वायरस, डीएनए वायरस क्या, हर्पीज वायरस। नेक्स्ट विच आर कॉल्ड नेकेड वायरस, नेकेड वायरस क्या कहलाते हैं, नॉन एनवेलप वायरस, जब ये नेकेड कहलाते हैं। नेक्स्ट इज बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेट्स ओनली इनसाइड द, बैक्टीरियोफेज कहाँ रेप्लिकेट होते हैं, बैक्टीरिया में। नेक्स्ट व्हाट डज द टर्म बैक्टीरियोफेज रेफर टू, बैक्टीरियोफेज क्या रेफर करता है, अ वायरस, वो वायरस जो कि इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पोलियो वैक्सीन इज गिवन बाय, पोलियो वैक्सीन किस तरह दी जाती है, वो दी जाती है ओरल ड्रॉप्स के जरिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पैथोजन कॉजिंग डिजीज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास पायल्स। नेक्स्ट है नेक्स्ट है विच इज नॉट अ वायरल डिजीज, वायरल डिजीज क्या नहीं है, मलेरिया वायरल डिजीज नहीं है, जो उसकी बात हो रही है। वो जो है एक बैक्टीरिया की वजह से हो रही है। द वर्ड हेपेटाइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ द, किसके अंदर इन्फ्लेमेशन होगी, लिवर के अंदर। नेक्स्ट विच इज एन ईयू ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिजीज इज कॉल्ड बाय वायरस, किसकी वजह से हो रहा है, वो मीजल्स और मम्स की वजह से। नेक्स्ट हेपेटाइटिस इज कॉल्ड बाय, हेपेटाइटिस किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। रेबीज इज कॉल्ड बाय, रेबीज किसकी वजह से होता है, रेबीज होता है रैबिडो वायरस की वजह से। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज एचआईवी मेनली इन्फेक्ट, एचआईवी किसको इन्फेक्ट करता है, थ्रू हेल्पर लिम्फोसाइट्स का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एड्स इज कॉल्ड बाय, एड्स किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से। नेक्स्ट है विच इज नॉट एन अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज रिलेटेड टू एचआईवी इन्फेक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी इम्यून सिस्टम, ऑप्शन है। नेक्स्ट द मेन टारगेट ऑफ एचआईवी इन एड इज, मेन टारगेट एचआईवी का क्या है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट, ऑप्शन डी। उसको हम मार्क कर देते हैं, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमरस अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज माइट अटैक अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो इसका आंसर हो जाएगा एड्स की वजह से बाकी डिजीजेस भी बॉडी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी, वायरस के बारे में क्या गलत है, तो ये गलत है, इट डज नॉट कॉज एड्स, ऑप्शन सी, ये एड पर आता है। नेक्स्ट है द एंजाइम इंटीग्रेट प्रोटीएज एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आर फाउंड इन विच वायरस, किसके अंदर पाए जाते हैं, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस के अंदर, ऑप्शन डी। ऐसे ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस ऐसे भी particles are surrounded with a coat known as the virus envelope or membrane made up of, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड एंड इन्फेक्टेड सिरिंजेस। तो इसका आंसर हो जाएगा एचआईवी। नेक्स्ट इन एड्स डी स्टैंड फॉर, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास डेफिशिएंसी। और आगे हमारे पास एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, वायरस इज लैटेंट मीनिंग ऑफ पॉइजन। नेक्स्ट सीरियन फेजिलर एब्सेंट इन, किसके एब्सेंट होते हैं, वायरस के एब्सेंट होता है जब भी वो इसको नॉन लिविंग बनाते हैं। अब जो फिजिक्स के क्वेश्चन, फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फिजिक्स का, व्हेन अ हेवी कॉइन फॉल्स अ शॉर्ट डिस्टेंस टुवर्ड्स द ग्राउंड नॉट रीच टर्मिनल वेलोसिटी व्हाट इज सो। तो इसका आंसर हो जाएगा कि केमिस्ट, ये जो है ये फिजिक्स का है। तो जो वेट ऑफ कॉइन है वो ज्यादा होगा, ये रेजिस्टेंस है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टू बॉल्स collide each other but it has been observed that the collision is elastic, this statement advocates the observation। तो इसका आंसर हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम इज इक्वल टू, ग्रेडियंट वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, एक्सीलरेशन के। नेक्स्ट है एट व्हाट पेयर ऑफ एंगल फॉर अ प्रोजेक्टाइल द रेंजेस आर इक्वल। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 डिग्री या 60 डिग्री, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है टू कार्स ट्रैवलिंग ऑन स्ट्रेट रोड इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर,
their relative velocity will be। तो इसका आंसर हो जाएगा 130 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है, टू बॉडीज हैविंग सेम मास अंडरगो इलास्टिक कोलिजन देन देयर वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन विल बी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास v1 इजिकल्स टू 0, v2 इजिकल्स टू 1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फॉर विच इट्स मैक्सिमम फ्रॉम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल टू। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री, और 45 के करीब क्या 46, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन बी नेवर बी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव, नेगेटिव के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, एट हाईएस्ट पॉइंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी विल बी। तो वेलोसिटी क्या होगी, बी एक्स कॉन्स्टेंट के बराबर हो जाएगा, बी वाई 0 के बराबर, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बॉडी कवर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 मीटर टुवर्ड नॉर्थ एंड रिटर्न बैक टू इट्स इनर्शियल पॉइंट बाय कमिंग 10 मीटर टुवर्ड साउथ, इस टोटल डिस्प्लेसमेंट इज। इसका आंसर हो जाएगा, तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 वाले का, कि 0 मीटर अलाउंग नॉर्थ टू साउथ मूव करेगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास, इन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है, तो वो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। जैसे लॉ ऑफ इनर्शिया सेटिस्फाइज, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बताती है, इक्विलिब्रियम बताती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास है, प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च इज वेलोसिटी मैक्सिमम एट। तो वो मैक्सिमम होती है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल पे। नेक्स्ट है, नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम इज नोन एज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट हमारे पास, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ मोशन स्टार्टिंग विद रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज अ स्ट्रेट लाइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 6.0, सॉरी 16 वाले का हमारे पास आंसर हो जाएगा 3 r1 इक्वल हो जाएगा r2 के। सॉरी ये 15 वाले का हो जाएगा, वो पास हो रहा होगा ओरिजिन से, और रेस्ट का मतलब होगा इनिशियल वेलोसिटी 0, ऑप्शन डी। Next, a projectile is thrown in an angle of 45 with horizontal and its range is r1. Another projectile is thrown at an angle of 44 with vertical and its range is r2. The relation between E1 and R2 is, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास R1 इक्वल हो जाएगा R2 के। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग अ प्रोजेक्टाइल पाथ एयर फ्रिक्शन इफेक्ट। एयर फ्रिक्शन किस चीज को अफेक्ट करती है, वो दोनों कंपोनेंट्स, वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट को अफेक्ट करती है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम डायरेक्शन ऑलवेज। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्स एक्सीलरेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास, द थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बताती है, एक्जिस्टेंस ऑफ पेयर ऑफ फोर्सेज इन नेचर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, a stone is dropped from a building top 80 meter high from the ground, in how much time will it touch the ground। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 सेकंड। नेक्स्ट, if two equal masses are in motion with same individual speed we can conclude that। हम बता सकते हैं कि उनके मोमेंटम जो है वो सेम है, उनके पास सेम मास है, सेम वेलोसिटी, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, a body is dropped from certain height and falls freely, its velocity after 5 सेकंड will be। तो 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 49 मीटर पर सेकंड। Next, हमारे पास, a bullet is fly horizontally with 20 मीटर per second in the absence of air friction, its horizontal velocity after 2 seconds will be। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। Next, a box of mass m 6 kg slides with speed v is equal to 4 meter per second across a frictionless floor to suddenly expose into two pieces. One piece with mass m1 is equal to 2 kg moves in the same direction with speed v1 is equal to 8 meter per second. The velocity of the second piece will। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी। 2 मीटर पर सेकंड, सॉरी। Next, a helicopter of weight W is eccentric with zero acceleration. The upward force F on it is। तो इसका आंसर हो जाएगा W इक्वल हो जाएगा F के, F इज इक्वल टू W। अब जो है केमिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ वी नो द मास ऑफ एन सब्सटेंस वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अदर सब्सटेंस एंड वाइस वर्सा विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा मास मास रिलेशनशिप, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वन मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ।
तो इसका आंसर हो जाएगा 22.414 DMT। नेक्स्ट है हाउ मेनी क्लोरीन एटम्स आर इन 2 moles ऑफ क्लोरीन। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 एक्सपोनेंशियल 23 एटम के साथ। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। An organic compound has empirical formula of C3H3O if molar mass of the compound is 110.15 molecular formula of this organic compound is। तो इसका आंसर हो जाएगा C6H6O2 ऑप्शन ए। नेक्स्ट है when 8 grams 4 moles of hydrogen react with 2 moles of oxygen how many moles of water will be formed। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है hydrogen burns in chlorine to produce hydrogen chloride the ratio of masses of reactant in chemical reaction H2 plus chlorine to HCl is। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 1:35.5 ऑप्शन बी है। नेक्स्ट पॉलीमर ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्मूला CH2 who has molar mass of 28,000 ग्राम पर मोल इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल। तो इसका आंसर हो जाएगा 200 टाइम्स ऑफ इस एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑप्शन सी। 200 गुना बन जाएगा। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ आइस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आइस के अंदर कितने होते हैं 3.01 एक्सपोनेंशियल 23 ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम आर प्रेजेंट इन 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम। तो इसका आंसर हो जाएगा 4.3 एक्सपोनेंशियल -3 ऑप्शन है। नेक्स्ट है 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर डिसॉल्व इन वाटर टू मेक 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इट्स सॉल्यूशन ऑफ मोलैरिटी। इसका आंसर हो जाएगा 0.55। नेक्स्ट है हमारे पास एन ऑर्गेनिक सैंपल कंसिस्ट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाज सब्जेक्टेड टू वाटर वेपर्स एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपोनेंट इज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास CH3O। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 8.00 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 0.25 ऑप्शन बी। नेक्स्ट है रिसर्चर हैज प्रिपेयर्ड a sample of 1 bromopropane from 10 gram of 1 propanol. After purification, he had made 12 gram of product. Which of the following is percentage rate? तो इसका आंसर हो जाएगा 90% जो है वो परसेंटेज ली गई। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज प्रेजेंट इन 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.4 मोल्स ऑफ NaCl ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड विद वन मोल ऑफ अ सबसेट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 जो कि एवोगाड्रो नंबर है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O इज इन एक्सपोनेंशियल 6 ग्राम ऑफ NaCO2। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 0.4 मोल्स ऑप्शन ए। नेक्स्ट कैलकुलेट द ग्राम H2O फॉर्म व्हेन 8 ग्राम ऑफ CH4 बर्न्स इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा हम 21 ग्राम्स। नेक्स्ट है हमारे पास while finding the relative atomic mass which of the following standard is used to compare the atomic mass of chlorine। इसका आंसर हो जाएगा कार्बन 12। नेक्स्ट है फॉर्मूला which shows the simplest whole number ratio for the atom of different element in compound। इसका आंसर हो जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 3 मोल ऑफ कैल्शियम विल कंटेन डैश ग्राम ऑफ कैल्शियम। कितने ग्राम होंगे उसके अंदर कैल्शियम के। तो उसके अंदर होंगे 120 ग्राम्स। तो क्या हमने मल्टीप्लाई किया 3 को 40 से। नेक्स्ट है द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन इज 10.8। इट हैज टू आइसोटोप masses 10 and 11 respectively। what is the percentage of isotope with the average mass of 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20%। एवरेज मास निकाला हमने 10x + 11 और ब्रैकेट में 1 - x लिख देंगे आंसर में 10.8 आ जाएगा 20%। नेक्स्ट है द बेस्ट स्टैंडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन 12 को हम रिलेटिव एटॉमिक मास के तौर पे यूज करते हैं। नेक्स्ट पीस ऑफ डायमंड एम्बेडेड इन अ गोल्ड रिंग वेट 6.0 ग्राम हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डज इट कंटेन। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.5 मोल्स कार्बन एटम इसमें होते हैं। नेक्स्ट आयरन इज मैन्युफैक्चर्ड इंडस्ट्रियली in blast furnace using hematite and a reducing agent carbon monoxide Fe2O3 plus 3CO Fe plus 3CO2 calculate the mass of iron ore it used to manufacture with 6 gram of iron with excess carbon monoxide assume that the process gives 100% yield। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 1.2 grams। नेक्स्ट हाउ मेनी कैल्शियम कार्बोनेट्स आर प्रेजेंट इन 175 kg ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका आंसर हो जाएगा 17.5 यानी कि ऑप्शन सी।
तो जजाकल्लाह, हमने टेस्ट भी कंप्लीट कर